Hello everyone, welcome to Dr. MDS Academy. So today in this lecture I am going to you next chapter which is heat exchanger. So in heat exchanger, so mainly three different types of heat exchangers takes place. One is our parallel flow heat exchanger, another is contour flow, and then after third cross flow arrangement. Then with the help of logarithm mean temperature difference, one can find out what is the heat transfer rate takes place, okay, and the various thermal resistance associated while the heat flows across the wall, all across the cylindrical wall. Okay, so two different flow of fluids. Okay, one parallel, another is contour flow. Okay, so derivations we have to understand in this chapter for both parallel and contour flow. So based on these topics, we are going to solve some of the previous year question. So let's begin from question number 1. 8 2000, okay, asked 2 marks question. Okay. क्या बोल रहा है एयर इंटर से कंटूर फ्लो हीट एक्सचेंजर at 70 degree Celsius and leaves at 40 degree Celsius. Water enters the 30 degree Celsius and leaves 50 degree Celsius. LMTD in the degree Celsius is, देखो क्या बोल रहा है, ये कंटूर फ्लो है, पैरेलल फ्लो नहीं है। कंटूर फ्लो क्या होता है, पैरेलल फ्लो क्या होता है, पहले ये समझते हैं। ये हो गया हम लोगों का लेंथ, ओके, ये हो गया हम लोगों का लेंथ, ओके, लेंथ ऑफ द हीट एक्सचेंजर। ये होता है टेम्परेचर, इधर भी टेम्परेचर, ठीक है। एक पैरेलल फ्लो के लिए देखते हैं, पैरेलल फ्लो, एक कंटूर फ्लो के लिए, काउंटर फ्लो के लिए, ठीक। पैरेलल फ्लो में कैसे होता है हम लोगों का, पैरेलल फ्लो में हम लोगों का हीट फ्लो कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, ओके। So this is our TH1 temperature, TH temperature, hot fluid along this arrow directions, okay, along this length. This is our T C1 cold temperature at inlet and flows along this path. This is our TC2 cold temperature C2. What is the difference between these two? ये हो गया हम लोगों का TH1, ये यहाँ से यहाँ तक का तो क्या बोलते हैं हम लोग, this is our theta 1 and this difference is our theta 2, okay. This is for the parallel case. Now for the contour fluid, यहाँ पर हो गया हाई टेम्परेचर पर हॉट फ्लूइड, और ये धीरे धीरे इस तरीके से आता है ना। ये हो गया TH2, ओके। कोल्ड फ्लूइड यहाँ से एंटर करता है, क्रॉस फ्लो, तो काउंटर फ्लो, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये TC1 होगा, और ऐसे 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 हम, हाँ, लगभग अप्रोक्स इसके पैरेलल में ये ऐसे फ्लो, TC2 आउटलेट, ओके। सो दिस इज आवर TH1. So this difference, this theta, this is our theta 1 and again this is our theta 2, okay. For this case theta 1 is what, TH1 minus TC1, and theta 2 is TH2 minus TC2, okay, for this parallel case. Similarly for
contour flow. Okay, what is theta 1? Theta 1 is th1 minus tc2. Okay, and t theta 2 is equal to th2 minus tc1. ठीक है, these are the two different cases. अब आप इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है, कंटूर फ्लो है, तो ठीक है, ये वाला हम लोगों को कंसिडर करना होगा. ओके, हीट एक्सचेंजर एट 70 डिग्री सेल्सियस एंड लीव्स एट 40 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या क्या दे रखा है, TH1 गिवन इज हॉट फ्लूइड का 70 डिग्री सेल्सियस. लीव होता है यहाँ पर TH2 पर, TH2 हॉट फ्लूइड का H मतलब हॉट, C मतलब कोल्ड. ठीक है, कितना, 40 डिग्री सेल्सियस. वाटर इंटर्स एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड लीव्स एट 50. वाटर मतलब कि ये TC1 इंटर, ये डायरेक्शन. ठीक है, डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट. TC1 इंटर, वन मतलब इनलेट, इंटर 30 डिग्री सेल्सियस एंड आउटलेट और लीव्स 50 डिग्री सेल्सियस. ठीक, LMTD क्या होता है, देखो LMTD क्या होता है, सिंपल, we know that theta m is equal to theta 1 minus theta 2 is equal to log, ठीक है, theta 1 upon theta 2. Okay, this is our what, LMTD, logarithm mean temperature difference. So what is theta 1 and theta 2, यहाँ से देखा जाए, यहाँ से निकाला जाए, theta 1 क्या है, means temperature difference between TH1 minus TC2, TH1 minus TC2 कितना आ रहा है, TH1 is 70 minus 50, तो दिस इज 20 डिग्री C, है ना. थीटा 2 कितना है, दिस इज थीटा 2, तो TH2 माइनस TC1 कितना आ रहा है, 40 माइनस C1 कितना, 30, ये आ रहा है 10 डिग्री सेल्सियस. तो सिंपली वी विल बी पुटिंग वैल्यूज. ये 20 हो गया थीटा 1, थीटा 2 कितना हो गया, 10, ये हो गया लॉग, ठीक है, 20 अपॉन 10. तो कैलकुलेटर ओपन, ये हम लोगों का लॉग हुआ, ये तो 2 आ जाएगा, है ना, 20 डिवाइडेड बाई 10. क्या, इसको इन्वर्स कर दो, इन्वर्स मल्टीप्लीकेशन है 10, तो वी आर गेटिंग 14.427, 14.427 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये भी डिग्री सेल्सियस में, ये भी डिग्री सेल्सियस. 14.427, 14.427, 14.427. ठीक है, ये आ रहा है आंसर हम लोगों का. ठीक, तो क्वेश्चन ऐसा सॉल्व होता है. सेकेंड क्वेश्चन गेट का 2004 का है, 2 मार्क्स में. ठीक है, इन ए कंडेंसर water enters at 30 degree Celsius and flows at a rate of 1500 kg per second. ठीक है, कंडेंसर कैसे काम करता है, एक होता है कंडेंसर, दूसरा होता है एवापोरेटर. ठीक है, ये हो गया डिस लेंथ, दिस इज आवर लेंथ, है ना. टेम्परेचर, दिस इज टेम्परेचर. ठीक, कंडेंसर, कंडेंसर एक होता है ना, एक होता है एवापोरेटर, है ना, एवापोरेटर. कंडेंसर
एवापोरेटर जनरली रेफ्रिजरेशन में ध्यान रखना, रेफ्रिजरेशन में होता है जिसका कूलिंग टेम्परेचर लो पे होता है, ठीक है, लो टेम्परेचर पर, यानी कि ये वाला लो टी, लो टेम्परेचर मतलब कि कोल्ड का टेम्परेचर, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। इसका जस्ट अपोजिट कर लो एवापोरेटर का कंडेंसर में, ये टी हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। तो जिसका अपोजिट अपोजिट हम लोग को फ्लूइड लेना पड़ेगा कंडेंसर में, तो ये होगा ऐसे, ये होगा ऐसे, इस तरीके से बढ़ेगा along दिस लेंथ डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या हो गया, कोल्ड का, ये हॉट कांस्टेंट है, ठीक है, हॉट फ्लूइड का। ये कोल्ड हो गया, इसके नीचे का टेम्परेचर है TC1 TC2। एवापोरेटर में क्या है, इसके ऊपर वाला है ना, ये इस तरीके से है ना, ये हॉट हो गया टेम्परेचर TH1 हॉट, TH2 आउटलेट पर, है ना। ये हो गया अपना कूल टेम्परेचर का, कोल्ड फ्लूइड हो गया, ये हो गया हॉट फ्लूइड, ठीक है। ऑलवेज रिमेम्बर एवापोरेटर में कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। एवापोरेटर में क्यों होता है, क्योंकि रेफ्रिजरेशन में ध्यान रखो, रेफ्रिजरेशन में लो टेम्परेचर पे रखते हैं रेफ्रिजरेटर को, ठीक है। एवं कंडेंसर में जस्ट अपोजिट हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे और दूसरे फ्लूइड को से हीट एक्सचेंज कराएंगे। तो क्या बोल रहा है, कंडेंसर मतलब ये वाला केस है। इन कंडेंसर वाटर इंटर्स एट 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वाटर इंटर्स एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड फ्लोज एट ए रेट ऑफ 1500 kg per hour, ओके। द कंडेंसिंग स्टीम इज एट 120 डिग्री, यानी कि इसका टेम्परेचर दे रखा है 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कंडेंसिंग स्टीम, ठीक है। कूलिंग वाटर लीव्स एट, देखो वाटर और ये वाटर है ना, ये वाटर और ये वाटर इंटर हो रहा है 30 पे, यानी कि दिस इज गिवन 30 और दिस इज गिवन हाउ मच 80 डिग्री सेल्सियस, बढ़ गया टेम्परेचर, है ना। तो TC1 given is 30 degree Celsius and TC2 given is 80 डिग्री सेल्सियस, और TH दे रखा है यहाँ पर स्टीम का कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, 120 डिग्री सेल्सियस दिस टेम्परेचर, ठीक है। और क्या दे रखा था, मास फ्लो रेट दे रखा है, किसका, वाटर का, है ना, वाटर का दे रखा है। मास फ्लो डॉट कर दिए हैं, तो 1500 kg पर आवर, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज इतना, ठीक है। Cp का वैल्यू दे रखा है 4.187 kg किलो जूल पर kg के। if the overall heat transfer coefficient is 2000, U का वैल्यू दे रखा है 2000 वाट पर मीटर स्क्वायर के। द हीट ट्रांसफर एरिया इज, ए का वैल्यू कितना होगा, मतलब हीट एक्सचेंजर का एरिया कितना होगा, ठीक है। तो कैसे करना है इसको, वी नो दैट, ठीक है, व्हाट वी नो दैट, व्हाट वी नो, कंडेंसर को लेके कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्यू क्यू हॉट का, हॉट कितना, हॉट क्या कर रहा है, फ्लूइड कोल्ड को दे रहा है, ठीक है। Q इज इक्वल टू MHCH, ओके, डॉट लगा दें, ठीक है। तो जूल पर सेकंड में आएगा डॉट लगाने पे, पर सेकंड ना, MC/DT, ठीक है। मतलब DT बोले तो TH1 माइनस TH2, लेकिन यहाँ पर तो H1 H2 कांस्टेंट है, ये लगाने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। MC के लिए बात करते हैं, MC के लिए बात करते हैं, कोल्ड फ्लूइड की, MCCC डॉट लगा दो, ठीक है। इसी का टेम्परेचर वेरी हो रहा है ना, TC2 बड़ा हुआ है, TC1 इज स्मॉल, TC2 माइनस TC
1। ठीक है, यूनिट क्या है? Q इज इक्वल टू एम सी डी टी का यूनिट होता है जूल, है ना, डॉट लगा दें तो पर सेकेंड हो गया। ठीक है, इजिकल टू, या यू कहें क्यू एक्सचेंज, ठीक है, क्यू ए थीटा एम, ये भी होता है फॉर्मूला एक एलएमटीडी से, यू ए थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइडेड बाई व्हाट, थीटा वन अपॉन थीटा टू। ठीक है, बाय एनर्जी बैलेंस, दिस इज वन, दिस इज टू, बाय एनर्जी बैलेंस के क्यू एच इज इक्वल टू क्यू एक्सचेंज। ठीक है, क्यू एच कितना है, सी सी, ओके, टी सी टू माइनस टी सी वन इज इक्वल टू एक्सचेंज कितना है, यू ए थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइडेड बाई थीटा लॉन थीटा वन अपॉन थीटा टू। ये जो लॉन लॉन है ये कैलकुलस का लॉन है। लॉग कौन सा वाला है, लॉग एक 10 होता है, एक लॉग ई होता है, ये वाला ई है यहाँ पर, ना कि ये वाला है, ये नहीं है, बेस ई वाला है, बेस 10 वाला नहीं है। ये कैलकुलस में यूज होता है, ये अलजेब्रा में यूज होता है। ओके, ये अलजेब्रा में यूज होता है। हियर थीटा वन थीटा टू कितना है, थीटा वन इज इक्वल टू कितना है, थीटा वन, थीटा वन इज व्हाट, दिस डिफरेंस ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस, दिस इज आवर थीटा वन एंड दिस इज डिफरेंस इज थीटा टू। तो थीटा वन कितना है, थीटा वन इज इक्वल टू 120 माइनस 80, सॉरी 30, है ना, ये हो गया ना, दिस इज 120 एंड दिस इज 30, है ना, 120 माइनस 30, ये आ गया हम लोगों का क्या, 90 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से थीटा टू का डिफरेंस कितना है, 120 तो है ही है, माइनस 80, ये आ गया हम लोगों का 40 डिग्री सेल्सियस, है ना, ये हो गया 120 माइनस 80। ठीक है, ये आ गया। वापिस आते हैं हम लोग यहाँ पर, एम ये कितना दे रखा है, ये कोल्ड फ्लूइड का दे रखा है ना, यानी कि वाटर का ही दे रखा है ना, ये वाटर का ही है ना, ये वाटर है और ये स्टीम है, ये स्टीम था और ये क्या था, ये वाटर था, है ना, वाटर था। तो 1500 किलो जूल पर आवर है, डिवाइडेड बाई 3600 सेकंड में कर दूं, एक घंटे में 3600 सेकंड, इंटू सीसी कितना दे रखा है, कोल्ड फ्लूइड का स्पेसिफिक हीट 4.187 इंटू 10 पावर 3 किलो जूल है, तो जूल में वी हैव कन्वर्टेड। टी सी टू कोल्ड फ्लूइड का टू टेम्परेचर माइनस, ये कोल्ड टू टेम्परेचर माइनस इनलेट, मतलब 80 माइनस 30, 80 माइनस 30, है ना, 80 माइनस 30 इक्वल टू यू, यू कितना दे रखा है, 2000 दे रखा है, हियर 2000, ओके, सिंपली पुट वैल्यू इनटू ए, वी हैव टू कैलकुलेट, ओके, थीटा वन कितना दिन निकालें, 90, 90 माइनस थीटा टू कितना है, 40 अपॉन लॉन 90 अपॉन 40। ठीक है, तो ये हम लोग का ए आना चाहिए यहाँ से। ठीक है, चलो तो कैलकुलेटर निकालते हैं। ओके,
हम्म क्या है, लॉन वाला पहले काम कर लेते हैं। लॉन 9/4 है ना, 90/4, ये इक्वल टू इसका इन्वर्स कर दो इंटू 50, है ना, इंटू 2000। ये हो गया एक साइड का, तो इन्वर्स कर दो और मल्टीप्लाई कर दो इंटू 4.187 इंटू 50, है ना, ये आ गया डिवाइडेड बाई 3600, है ना, ये आ रहा है 0.707, ये आ रहा है 0.707, कितना आ रहा है 0.707, इज कमिंग 0.707, ये स्टैंडर्ड यूनिट में आएगा मीटर्स का, है ना। आंसर है क्या? यस, फर्स्ट वन इज द 0.707, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 3। In parallel flow heat exchanger operating under steady state, heat capacity rates, ठीक है, parallel flow case given, graph plot length, temperature T, parallel flow means like this, okay. This is our hot fluid TH1, hot exit, okay, दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, TC1 cold fluid inlet, cold fluid exit, okay. So this is our theta 2 and this our what, theta 1, okay. अब आते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर ऑपरेटिंग अंडर स्टेडी स्टेट, द हीट कैपेसिटी रेट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मास फ्लो रेट ऑफ द हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड्स आर इक्वल, मींस MHCH equal to MCCC, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट, वही तो बोल रहा है ना, प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड मास फ्लो रेट, ठीक है, दोनों के क्या है, कांस्टेंट है। द हॉट फ्लूइड फ्लोइंग एट 1 kg पर सेकेंड, हॉट फ्लूइड, ठीक है, MH दे रखा है, ठीक है, डॉट 1 kg पर सेकेंड, टाइम दे रखा है ना, तो डॉट लगा। CP दे रखा है हॉट फ्लूइड का ही 4 kg पर किलो जूल पर केजी केल्विन, इंटर्स द हीट एक्सचेंजर एट 102 डिग्री सेल्सियस, हॉट फ्लूइड बोल रहा है, इंटर हो रहा है ना, यानी कि TH1 गिवन इज 102 डिग्री सेल्सियस, दिस, है ना, कौन दिस, तो ये दिस, है ना, TH1 12 डिग्री, while the cold fluid has an inlet temperature 15 डिग्री सेल्सियस, ये दे रखा है यहाँ, TC1 given is 15 डिग्री सेल्सियस, है ना, दिस इज गिवन 102 डिग्री सेल्सियस, है ना, इंटर्स द हीट एक्सचेंजर हॉट फ्लूइड, ठीक है, इनलेट टेम्परेचर दे रखा है कोल्ड फ्लूइड का 15 डिग्री सेल्सियस, द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ द हीट एक्सचेंजर इज एस्टिमेटेड टू बी, ओवरऑल मतलब यू का वैल्यू 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर ए, ठीक है, यू का यूनिट और एच का यूनिट सेम होता है, ठीक है, एंड द corresponding heat transfer surface area is A value given is 5 meter square. Neglect heat transfer between the heat exchanger and ambient. Okay, the heat exchanger is characterized by the following relations.
2 epsilon given 2 epsilon is equal to 1 minus exponential, है ना क्या, -2 NTU number of transfer unit. The exit temperature in degree Celsius for the curled fluid is, ये वाला exit temperature क्या होगा ये, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, है ना, कैसे करना है इसको, देखो 2 एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल दे रखा है ना, -2 NTU का यूज करना होगा मेरे को, है ना। NTU बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांसफर, UA अपॉन थीटा मिनिमम, C मिनिमम, ओके। ये क्या है, कैपेसिटी रेशियो है, ओके, हीट कैपेसिटी रेशियो। C मिनिमम क्या है यहाँ पर, C मिनिमम और C मैक्सिमम बराबर है यहाँ पर, ठीक है। C C मिनिमम, C बराबर क्या होता है, कैपिटल C, प्रोडक्ट ऑफ M इंटू C, ठीक है, दोनों का बराबर है तो वी कैन टेक एनी, ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कोई मिनिमम कोई मैक्सिमम अलग अलग नहीं दे रखा है, क्यों, क्योंकि दोनों का बराबर है ना, इनमें से कोई मिनिमम कोई मैक्सिमम नहीं, दोनों बराबर है। तो सी मिनिमम एक निकालते हैं, ठीक है, तो एक किसी को ले लो, एम एच इंटू सी, किया जाएगा, है ना। एम एच डॉट कितना है 1, इंटू सी भी कितना है 4, इंटू किलो जूल को जूल मिला 4000, ठीक है, ये आ गया। सी, यू कितना दे रखा है यहाँ पर, निकालते हैं एन टी यू, बाकी सब तो दे रखा है ना। यू कितना दे रखा है, यू गिवन इज 1, 1 2 3, 1 किलोवाट है तो 1000 कर दिया वाट मिलाने के लिए, इंटू ए हाउ मच गिवन 5, नीचे में 4000, है ना, ये 3 से 3 उड़ गया, 5/4 कितना आ रहा है, 1.25, ठीक है। अब क्या यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं क्या, 2 एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल, है ना, -2 NT, है ना, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2, है ना, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल -2 इंटू NTU कितना है 1.25, है ना, हाउ मच वी आर गेटिंग एप्सिलॉन, चलो निकालो, ये निकालो, e⁻ कितना है, -2 इंटू 1.25, है ना, ये इतना आ गया, 1 माइनस आंसर ये आ गया डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 0.4589, 0.4589, 0.4589, ये आ गया हम लोगों के पास क्या, इफेक्टिवनेस, है ना, इफेक्टिवनेस आ गया। नाउ इफेक्टिवनेस आया तो नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, हमें टेम्परेचर ये निकालना है। इफेक्टिवनेस जब आया तो इसका यूज करेंगे, क्या होता है इफेक्टिवनेस, Q एक्चुअल अपॉन Q maximum possible heat transfer, actual heat transfer takes place to the maximum possible heat transfer takes place,
इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, ये किस में हो रहा है, इसके इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इस वाले सी के बारे में, कोल्ड फ्लूइड के बारे में। ये हॉट फ्लूइड है, ये हो गया कोल्ड फ्लूइड, है ना, कोल्ड फ्लूइड। तो कोल्ड फ्लूइड में कितना एक्चुअल हीट फ्लो हो रहा है, एम सी डॉट के सी सी, ठीक है, इनटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कितना है, टी सी टू अननोन है, ये तो निकालना है, माइनस टी सी वन, है ना, अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर कितना होता है, सी मिनिमम इनटू कितना, टी मैक्सिमम हीट चेंज इन टेम्परेचर, टी एच वन माइनस टी सी वन, ठीक है, मैक्सिमम कितना टेम्परेचर है ये, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। क्योंकि क्या है, सी मिनिमम इज इक्वल टू सी मैक्सिमम है यहाँ पर, हियर सी मिनिमम इज इक्वल टू सी मैक्सिमम, क्यों, तो दे तो रहा है क्वेश्चन में, एम एच सी एच इज इक्वल टू एम सी टी सी, ये तो दे रखा है ना यहाँ पर, है ना, सेम थिंग, तो ये कैंसिल हो गया, है ना, क्या आ गया, टी सी टू माइनस टी सी वन अपॉन टी एच वन माइनस टी सी वन, ठीक है, दिस इज आवर इफेक्टिवनेस। और इफेक्टिवनेस कितना निकालें हम लोग, 0.04, 0.4589 इक्वल टू, व्हाट इज टी सी टू, डोंट नो, टी सी वन 15, टी एच वन 102, 102, टी सी वन हाउ मच, टी सी वन दिस वन 15, है ना, यहाँ से निकालते हैं, टी सी टू कितना आ रहा है, दिस विल बी आवर आंसर, ये आया इंटू इसी से करते हैं, 102 माइनस 15, ओके, ये आ गया प्लस 15, ये आ रहा है 54.929, 54.929 ये डिग्री सेल्सियस में ही आएगा, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है, कितना आंसर आ रहा है, क्या 54.925, ठीक है, क्लोज टू दिस आंसर इज दिस इज द करेक्ट आंसर, 5 डिग्री सेल्सियस, ओके, कुछ इस तरीके से हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2004 का है, मैच द फॉलोइंग है, डिफरेंट ग्राफ्स है, ठीक है, किसमें फिट हो रहा है दैट वी हैव टू फाइंड आउट। देखो एक कंटूर फ्लो है, पैरेलल फ्लो है, इवापोरेटिंग, एक कंडेंसर, देखो ये टेम्परेचर हो गया एक्सिस, टी टेम्परेचर, ये हो गया एरिया, एरिया और लेंथ, भाग एरिया टेम्परेचर, है ना, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर हो, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका अलग अलग क्या है, हाँ देखो,
पहले पढ़ते हैं हम लोग इवापोरेटर में। इवापोरेटर, ठीक है। इवापोरेटर में क्या होता है, ये हम लोग इवापोरेटर पढ़ते हैं। इवापोरेटर, ठीक है। इस एक होता है कंडेंसर, कंडेंसर। एक होता है पैरेलल, एक होता है कंटूर, ठीक है। ये क्या है, ऑल आर हीट एक्सचेंजर्स। जस्ट टाइप, टाइप, हीट एक्सचेंजर टाइप। एवापोरेटर में क्या होता है, ध्यान रखने वाली बात है, एवापोरेटर मतलब कि आरएसी में, रेफ्रिजरेशन में हम लोग यूज करते हैं कि लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे हमेशा कांस्टेंट एक लाइन ड्रॉ, ठीक। कंडेंसर में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होगा, हाई टेम्परेचर पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि ये इसे स्टीम बोलेंगे, ठीक है, स्टीम। इसको क्या बोलेंगे, इसको कूल्ड फ्लूइड बोलेंगे या रेफ्रिजरेंट बोलेंगे, रेफ्रिजरेंट। ये टी कोल्ड है, इज इक्वल टू कांस्टेंट कोल्ड फ्लूइड, ठीक है। इसको कोल्ड फ्लूइड भी बोलते हैं, ये बोलते हैं हॉट फ्लूइड, ठीक है। तो टी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना। तो दोनों में ये डिफरेंस, रेफ्रि एवापोरेटर में लो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और कंडेंसर में हाई टेम्परेचर। एक दूसरा फ्लूइड यहाँ से एंड करेगा, ठीक है। अलोंग दिस लेंथ और एरिया टेम्परेचर क्या करेगा, जैसे जैसे ये फ्लूइड फ्लो होगा इस तरीके से घटेगा उसका टेम्परेचर। मतलब ये जो इन हो रहा है टी हॉट फ्लूइड, इसको धीरे 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 ठंडा करेगा और ये यहाँ तक ठंडा होकर टीएच टू से एग्जिट करेगा, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया हम लोगों का हॉट फ्लूइड, है ना। एग्जिट कर रहा है, एंट्री ले रहा है हॉट टेम्परेचर से और एग्जिट ले रहा है कूल टेम्परेचर। कंडेंसर में क्या होगा, ये हो गया हम लोगों का कोल्ड, है ना, और हाई टेम्परेचर पे है ना, तो ये क्या करेगा, हीट देगा कोल्ड वाला को, तो इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाने में काम करेगा। टीसी टू तक टेम्परेचर बढ़ गया, टीसी 1 से टीसी 2 इंक्रीज हुआ, ठीक है। उसी तरीके से पैरेलल फ्लो में क्या होता है, पैरेलल फ्लो में हम लोगों का एक पाइप है, हम लोगों का फ्लूइड है, इस तरीके से फ्लो हो रहा है। एक दूसरा हम लोगों का, है ना, इधर से आ रहा है फ्लूइड, इधर से पास हो रहा है, मीन्स बोथ द फ्लूइड ए एंड बी passes in the or flow in the same direction। लेकिन ये हो गया पैरेलल का केस, पैरेलल का केस। कंटूर में क्या होता है, कंटूर में क्या होता है, एक हम लोगों का फ्लूइड पाइप ठीक है, इस तरीके से फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना। और दूसरा क्या है हम लोगों का, इस तरीके, ऐसे यहाँ से आ रहा है, ये फ्लूइड ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, इस तरीके से ऐसे नहीं, ये इस तरीके से फ्लूइड ए जा रहा है, फ्लूइड ए, both fluid A and B are passing in the or crossing opposite to each other, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ कंटूर। तो पैरेलल फ्लो में क्या होता है, एक फ्लूइड यहाँ पर टी एच हाई टेम्परेचर पे होता है, दूसरा फ्लूइड हम लोगों का टी वन फुल टेम्परेचर, दोनों क्या होता है, ठीक है। दिस इज आवर व्हाट, सपोज हॉट फ्लूइड, ठीक, और ये हम लोगों का कोल्ड फ्लूइड, ठीक है। अपने अपने पाथ से जा रहा है, दो अलग अलग पाइप से, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, दोनों फ्लूइड एक कोल्ड और हॉट दोनों हीट एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से पाथ हम लोग पैरेलल के केस में, ठीक है।
दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। तो TH1 का टेम्परेचर डाउन होगा, हीट दिया तो टेम्परेचर डाउन हुआ, TC1 हीट लिया हॉट से तो TC2 तक टेम्परेचर बढ़ गया। दिस इज आवर हॉट फ्लूइड, दिस इज आवर कोल्ड। ठीक है। कंटूर का केस में क्या होता है? कंटूर के केस में हम लोगों का दोनों एक TH1 टेम्परेचर पे बैठा हुआ है, एक दूसरा हमें इसका टेम्परेचर डाउन होता है। ठीक है, TH2 है ना, ये हम लोगों का सपोज हॉट फ्लूइड है और ये हम लोगों का कोल्ड फ्लूइड। ये इस तरीके से जा रहा है ना। दूसरा क्या होगा? दूसरा का दूसरा दूसरे एंड से, यानी अपोजिट एंड से, जहां से ये एग्जिट हो रहा है वहां से दूसरा फ्लूइड, कोल्ड फ्लूइड एंट्री लेगा और ये इस तरीके से। ठीक है, दिस इज आवर TC, है ना, इस तरीके से। दिस इज आवर हॉट फ्लूइड एंड दिस वन इज कोल्ड। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, क्या है? एवापोरेटिंग। एवापोरेटिंग कौन सा है? नीचे वाला कांस्टेंट ग्राफ होगा। ये वाला होगा क्या? हो सकता है ये वाला होगा, है ना, ये वाला हो सकता है। ठीक है, ये वाला तो होगा नहीं, ये होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है कभी भी। ठीक है, तो सी का 1, डी का इसका जस्ट ऊपर में ये वाला हो जाएगा 2। ठीक है, पैरेलल का केस में क्या होगा? दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ये वाला एक डायरेक्शन नहीं जा रहा है, ये एक डायरेक्शन में जा रहा है, 4 हो जाएगा। ठीक है, और बचा क्या? 3। तो 3 है क्या? एक ये डायरेक्शन में, एक ये डायरेक्शन में, मतलब कंटूर, ये हो गया, है ना। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 इज द आंसर। ठीक है, आंसर कौन सा है? दिस B1 इज आवर आंसर, है ना। आंसर कौन सा होगा? ये हो जाए। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2006 का है। द इक्वेशन ऑफ इफेक्टिवनेस, ठीक है, क्या दे रखा है इफेक्टिवनेस का? 1 माइनस एप्सिलॉन ई टू द पावर माइनस एन टी यू, एप्सिलॉन इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर एन टी यू फॉर ए हीट एक्सचेंजर वैलिड इन द केस ऑफ। इस केस में देखो, इसमें दो केस आता है। पहला केस एवापोरेटर और कंडेंसर के लिए, यहाँ और लगाऊंगा ताकि कंफ्यूज। ठीक है, और कंडेंसर के लिए देखो, टी सी हमें थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े है ना, Cp इज इक्वल टू डी एच अपॉन डी टी, पढ़े ना। और एक Cv इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी, पढ़ाया था मैं। ठीक है, यू है तो वी हो जाएगा, यू के बाद ABCD में वी आता है। इसका यूज नहीं करना मेरे, इसका यूज करना मेरे, वी विल यूज दिस। Cp इज इक्वल टू डी एच अपॉन डी टी। मैं क्या बताया था क्वेश्चन में? इवापोरेटर और कंडेंसर के केस में टेम्परेचर चेंज होता है क्या? इवापोरेटर और कंडेंसर के केस में टेम्परेचर चेंज होता है क्या? ये इवापोरेटर का केस में और कंडेंसर के केस में टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ठीक है, ये वाला केस में, ये वाला केस में नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वाला लाइन कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है इवापोरेटर। ठीक है, तो ये डालने पर हमें का ध्यान रहेगा, कभी
भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो एवापोरेटर टेम्परेचर के केस में क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या हम लोग डी इक्वल टू जीरो करेंगे क्या, है ना। तो Cp इक्वल टू क्या आया, डी एच अपॉन जीरो, यानी कि 1/0 इक्वल टू, यहाँ इंफिनिटी कर सकते हैं, इंफिनिटी। ठीक है, यानी कि सी मैक्स क्या आ गया, इंफिनिटी। मैक्सिमम ही तो कहेंगे, इससे ज्यादा इंफिनिटी से मैक्सिमम कुछ और हो सकता है क्या, नहीं। सी इज इक्वल टू जो कैपेसिटी रेशियो होता है, ठीक है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम, सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम। ठीक है, करते हैं क्या डिफाइन, सी मिनिमम को मिनिमम रहने दो, और इस एवापोरेटर और कंडेंसर के लिए सी का वैल्यू कितना है, सी मैक्स कितना है, सी मैक्स 1/0 है, इसी को 1/0 भी लिखते हैं, तो वो यहाँ 1/0 कर दूं क्या सी मैक्स की जगह, है ना, कितना आ गया, जीरो। सी बराबर जीरो, ये किसके लिए होता है, कंडेंसर और एवापोरेटर। एवापोरेटर के लिए हो गया, सी का वैल्यू क्या होता है, जीरो, है ना, जीरो। अब देखो डेरिवेशन में, हम लोग डेरिवेशन में एप्सिलॉन इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट माइनस इन टी यू 1 प्लस सी अपॉन 1 प्लस सी, ये किसके लिए निकाले थे, पैरेलल के लिए, है ना, पैरेलल के लिए। उसी तरीके से 1 माइनस एक्सपोनेंशियल, है ना, इसको याद रखना पड़ेगा, डेराइव करने के बाद ये आ रहा है, ठीक है, 1 माइनस सी, है ना, 1 माइनस सी एक्सपोनेंशियल माइनस एन टी यू 1 माइनस सी, ठीक है, ये होता है कंटूर के लिए, कंटूर फ्लो के लिए, हीट एक्सचेंजर, फ्लो हीट एक्सचेंजर, ठीक है, ये you have to remember these two both, है ना, ये। अब देखो हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है इफेक्टिवनेस इतना दे रहा, हीट एक्सचेंज इज वैलिड फॉर, ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, ये फॉर्मूला निकालो इस फॉर्मूला दोनों से, ठीक है, क्या करें कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है फॉर्मूला वो आ जाए, क्या करें कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है फॉर्मूला वो आ जाए, फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, क्या हम लोग यहाँ पर पुट सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये वाला जीरो, है ना, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, इसमें कितना आता है, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल, है ना, ब्रैकेट माइनस एन टी यू, ठीक है, 1 प्लस जीरो ब्रैकेट क्लोज अपॉन 1 प्लस जीरो, कितना आ रहा है, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल, है ना, ब्रैकेट माइनस एन टी यू, है ना, नीचे में 1, यही आ रहा है क्या, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एन टी यू, ठीक है, यही तो आ रहा है ना, ये आ गया 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एन टी यू, है ना, ये किसके लिए वैलिड है, एवापोरेटर और एवापोरेटर और कंडेंसर के लिए वैलिड है। तो कहीं है क्या आंसर में एवापोरेटर और कंडेंसर, है ना, एवापोरेटर और कंडेंसर है, देखो बॉयलर कंडेंसर दे रखा है, ठीक है, पैरेलल देखो इसमें भी दे रखा है पैरेलल कंडेंसर, कंटूर फ्लो के लिए है क्या, ये जो है डेरिवेशन वी हैव, इस सी का वैल्यू किसमें पुट किए थे, इसमें वैल्यू पुट किए, है ना,
इसमें पैरेलल के केस में, ठीक है। सी के वैल्यू इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, सी के वैल्यू इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते, ठीक है, करोगे तो डायरेक्ट आएगा सेम, ठीक है। ऑल्सो पुट c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये यहाँ पर p कर दो, कंफ्यूजन ना हो, कंटूर फ्लो, ये पैरेलल के लिए c के लिए c0 पुट करो, यहाँ पर क्या आ रहा है 1 माइनस एक्सपोनेंशियल, ठीक है, माइनस NTU, ठीक है, अपॉन 1, ठीक है, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट माइनस NTU, आ रहा ना, दोनों तो बराबर है ना, मतलब कि पैरेलल के लिए भी और कंट्रोल के लिए भी क्या है, सेम फॉर्मूला आ रहा है। ये जो फॉर्मूला आ रहा है सेम आ रहा है किसके लिए, पैरेलल के लिए भी एंड कंटूर के लिए भी, कंटूर फ्लो के लिए ना। व्हेन c इज इक्वल टू 0 पुट करने पर, c इज इक्वल टू 0 कब होगा, इवापोरेटर और कंडेंसर के केस, ठीक है। तो पैरेलल वाला हो जाएगा एक, है ना, और कंटूर के लिए होगा, पैरेलल भी हो गया कंटूर भी हो गया। और कंडेंसर के लिए है क्या, कंडेंसर के लिए तो है ही है ना, इवापोरेटर नहीं दे रखा है ऑप्शन में, लेकिन ये कंडेंसर के लिए, तो आंसर इज आवर सी, ठीक है, आंसर इज आवर सी। गैस टरबाइन के लिए नहीं होता, ठीक है। एक स्टेप मैं और जाता हूँ, ठीक है, ये 1 का लिए था, दिस 1 मैं बता दिया, अब 2 के लिए, और गैस टरबाइन, गैस टरबाइन में क्या होता है, तो जस्ट अपोजिट होगा, c इज इक्वल टू 0 था ना, यहाँ c इज इक्वल टू क्या होगा 1, क्यों होगा 1, क्योंकि जो हम लोग का टरबाइन है, जो हीट यहाँ से जो हो रहा है, इन हो रहा है, ये इन हो रहा है और आउट हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, MHCH, हॉट हॉट, कोल्ड कोल्ड, MCCC, कुछ काम तो किया ना, है ना, कुछ पावर दिया, है ना, जो फ्लूइड है तो सेम फ्लूइड ही तो फ्लो हो रहा है, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से जो हम लोगों का हॉट फ्लूइड जा रहा है हाई टेम्परेचर, सेम फ्लूइड तो हो रहा है, सेम फ्लूइड, ठीक है, ध्यान से, सेम फ्लूइड एट 1 एंड 2, इसे 1 मानो, इसे 2 एग्जिट पर, ठीक है। सेम फ्लूइड मीन्स बस हीट कैप, सेम फ्लूइड मीन्स दोनों स्टीम ही था, बोथ स्टीम, ठीक है, टेम्परेचर रिलीज किया, ठीक है। तो यहाँ पर MHCH इक्वल टू MCCC होगा क्या, दोनों का हीट स्टोरेज कैपेसिटी तो सेम था ना, क्यों, ये था स्टीम में, ये था स्टीम में, है ना, तो ये वाटर में कन्वर्ट हो गया, टरबाइन के केस में ये स्टीम में था यहाँ पर एंट्री में, और यहाँ पर ब्लेड को रोटेट कराया काम करने के बाद यहाँ वाटर निकल जा रहा है, लेकिन दोनों तो सेम ही फ्लूइड है, सेम ही फ्लूइड है यहाँ पर, ठीक है, स्टीम और वाटर दोनों का हीट स्टोरेज कैपेसिटी सेम होगा, एम सी इज इक्वल टू एम सी होगा, यानी कि सी इज इक्वल CH कैपिटल C कैपेसिटी रेट, H इज इक्वल टू C, ठीक है। ये हो गया स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, ठीक है, हॉट फ्लूइड का, हॉट फ्लूइड का, ये हो गया कैपेसिटी रेट फॉर हॉट फ्लूइड, जनरली क्या होता है M इंटू
सी का प्रोडक्ट को बोलते हैं कैपेसिटी रेट। तो दोनों का, एक स्टीम का जितना कैपेसिटी रेट होगा उतना फ्लूइड का भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का दोनों का क्या है, दोनों का दोनों, दोनों का दोनों बोथ स्टीम, क्या, बोथ सेम फ्लूइड है, सी डी। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, सेम चीज यहाँ पर पुट करो तो C इज इक्वल टू सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम। तो कैपेसिटी रेट डिफाइन करते हैं, है ना। तो ये दोनों तो बराबर हो गया इस केस में, है ना, यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, तो गैस टरबाइन के केस में इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, based on parallel flow and contour flow heat exchangers. Some of the few more questions will be solving in the next part of lecture. Okay, based on the using the effectiveness of heat exchanger. Okay, and then after how one you can find out the exit temperature of hot and cold fluid. Okay, so let's meet in the next class, okay, for those questions. Okay, so please share these lectures videos with your friends so that they will prepare for the competitive examinations. If any questions or doubt you are having, please comment in the comment box, okay, so that I can clear those questions. Thank you all.